So let me get into the word now. सो मैं वचन में जाऊंगा Go with me to the book of Mark chapter 10 please. और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जाएं And let's read from verse 46 और onwards. आइए वचन 46 से हम पढ़े It says, now they came to Jericho. और वो यरीहो में आए Verse 46, and as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। Now notice over here, यहाँ ध्यान दीजिए the word Bartimaeus means the son of Timaeus. Okay, for और your knowledge. यहाँ ये शब्द बर्तिमाई जो है ये इसका मतलब है तिमाई का पुत्र। How many are understanding this? कितने लोग इस This is बात just को for समझते somebody who हैं? wants to know how it works. और ये उसके लिए है जो जानना चाहते हैं। So if you add bar to any name, that means son of so and so. और अगर आप बार ये शब्द लगाए तो इसका मतलब होता है किसी का बेटा। All right, let me go further. और मैं आगे जाऊंगा And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. और वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। Notice he was blind, और ध्यान दे वो अंधा था but in God's mercy he could hear. परमेश्वर की दया से वो सुन सकता था। In life you will have incapacities, you will have issues, but God will always leave something for you that can birth your miracle. और जीवन में कई बार आपकी जो है क्षमता बहुत कम हो सकती है, समस्याएं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में चमत्कार को जो है वो रखेगा। Notice the Bible says he was a beggar. और ध्यान दे बाइबल कहती है कि वो एक भिखारी था। Notice he was blind. और ध्यान दे वो अंधा था। But there was something that God gave him. लेकिन कुछ ऐसा था जो परमेश्वर ने उसे दिया। Today, if you are listening to me, और अगर आज आप मुझे सुन रहे I हैं, want to tell you, no matter what difficulty you are going through, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कठिनाई से आप जा रहे हो। God will deposit something in a man's life, in a woman's life, that will birth the miracle in his life. Somebody say hallelujah. और परमेश्वर स्त्री पुरुषों के Yes. जीवन में कुछ ऐसा जमा करेगा जो आगे जाकर चमत्कार का निर्माण करेगा। Many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं God has left me. परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। You are not blind. और आप देखो ये अंधा था, You are not a beggar. आप भिखारी नहीं हो, You आप are not अंधे on नहीं the हो, road. You are not on the road. और आप सड़क पर नहीं हो। But look at this. लेकिन It देखो इसे। says, he heard that it was Jesus. और देखो उसने सुना कि ये यीशु नासरी है। Write this down. और इसे लिख ले। Romans 10:17, he heard that it was Jesus. Faith comes by hearing. और आप देखो उसने सुना कि यीशु है और रोमी 10:17 कहता है कि विश्वास आता है सुनने You से। see, faith prompted him to cry out. और हम देखते हैं कि विश्वास का नतीजा ये हुआ कि वो पुकारने लगा। You see, it says he began to cry out. Now, he did not just cry out anything. और आप देखो उसने वो पुकार उठा और वो कुछ भी नहीं पुकार रहा था। You see, your prayer must have meaning. Your prayer must be articulated based on the word of God, based on the promises of God. और देखिए आपकी प्रार्थना का एक विषय होना चाहिए। आपको जो है प्रार्थना परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर करना Notice है। what he called Jesus. और ध्यान दे यहाँ पर उसने यीशु से क्या कहा। He says Jesus. उसने कहा यीशु। He did not say Jesus. उसने ये नहीं कहा He said यीशु। son of David. उसने कहा दाऊद की That's संतान। where his prayer totally changed. और यहाँ पर इसकी प्रार्थना पूरी तरह He बदल said, गई। son of David, have mercy on me. और उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया He कर। did not say son of Mary. और उसने ये नहीं कहा मरियम का बेटा। He did not say son of Joseph. और उसने ये नहीं कहा यूसुफ का बेटा। He was saying, you are the Messiah. और Hallelujah. उसने कहा तू मसीहा है। He connected. You see, he did not look at his lineage. Everybody knew he was a carpenter's son. But he says, you are connected to David. You are the coming Messiah. Hallelujah. और आप देखो यहाँ पर उसने जो है यीशु के वंश को जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो जानता था कि वो जो है दाऊद की संतान है और उसने उसी तरह से A पुकारा। blind beggar tapped into the promise of God. और हम देखते हैं कि एक अंधा भिखारी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जो है छू लेता है। How many of you understand right now? और कितने लोग इस बात को But समझ there रहे were हैं। people who were having eyes. There were people who were not beggars. They did not call him son of David. How many are understanding me right now? लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंखें हैं जो सड़क पर नहीं है, जो भिखारी नहीं है, लेकिन वो अभी भी दाऊद की संतान को नहीं जानते। How many of you following me right now? और कितने लोग मुझे समझ रहे हैं। One of the gospel accounts says many people told him, shut up. और सुसमाचार के एक जो है वृत्तांत में लिखा है कि कई लोगों ने उसे धमकाया He कि says, चुप बैठ, keep quiet. और उसे कहा चुप बैठ, Why are you shouting? क्यों तू चिल्ला रहा है।
But he shouted all the more, the Bible says. लेकिन जितना उसे चुप कराने की कोशिश की उतना ही ज्यादा वो चिल्लाने How लगा। many are listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस When बात you को? start crying to the Lord, when you start praying, there will be some forces that will stop you from praying. How many of you listening right now? और जब आप जो है प्रार्थना करना शुरू Yes. करेंगे, परमेश्वर को पुकार उठेंगे, तब ऐसी कोई शक्ति होती है जो आपको चुप कराने की कोशिश When करेगी। you start praying, your own people will come to say, इतना क्या प्रार्थना करता है? और लोग आकर कहेंगे क्यों इतने प्रार्थना कर रहे हो Why are you fasting? और क्यों उपवास कर रहे हो? God will answer you, don't worry. परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेगा, आप But the चिंता मत no, करो। notice over, that's not my message. लेकिन ध्यान दे, यहाँ पर ये मेरा संदेश नहीं है। Mark these words in your heart. और अपने हृदय में इस वचन की गांठ मारे। So Jesus stood still. और हम देखते हैं कि यीशु वहीं पर जो रुक गया। Jesus was walking. He came into Jericho, came out of Jericho. He was walking. What is it that made Jesus, through whom all things in this universe were made, what made him to stand at one place? और हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो में आया, यरीहो से वो जा रहा था, वो चल रहा था, लेकिन वो अचानक से रुक गया। वो परमेश्वर जिसने सारी दुनिया की रचना की, ऐसा क्या था जिससे यीशु को रुकना पड़ा? Very often we meditate on the steps of Jesus. बहुत से Today बार- let us look at the stops of Jesus. बहुत से बार हम यीशु के कदमों पर जो है हम मनन करते हैं, लेकिन आइए आज हम यीशु के जो है रुकने पर हम ध्यान दें। How many of you listening right now? और कितने लोग जो है सुन रहे हैं। What gives a meaning to a sentence is a comma and a full stop. Come और on. हम देखते हैं कि एक वाक्य जो है उसे अर्थ क्या देता है, वो जो कॉमा और फुल स्टॉप होता है। You know, are you listening right now? और क्या आप सुन रहे हैं So you मुझे? see, Jesus had his commas. Jesus also had his full stops. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास अपना कॉमा था और उसके पूर्ण विराम भी थे। You know, everybody tells you follow the footsteps of Jesus. और हर कोई कहता है कि यीशु के कदमों पर चलो, Walk like Jesus. यीशु के समान चलो। And that's correct. और ये सही बात भी है, But also stop like Jesus. Hallelujah. लेकिन यीशु की तरह हमें रुकना भी है। Do you know in the word of God there are stops? और आपको मालूम परमेश्वर के वचनों में रुकना भी है। There are stops. How many of you following me right now? और कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? Let me just go there. Can I और go मैं there? वहां पर जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Now the question is, अब सवाल ये है, what made Jesus to stop? और ऐसा क्या था जिसकी वजह से यीशु रुक गया? I like what pastor said. ऐसा क्या था जो खुदा को रोक सकता है एक जगह पर? Listen to me. If a rich man called, maybe Jesus would stop. Maybe. और शायद हो सकता है एक धनवान ने अगर पुकारा होता तो शायद वो रुक जाता। Blind beggar made Jesus stop. लेकिन एक भिखारी जो है वो यीशु को रोक पाता है? What is it? How many of you want to know? और कितने लोग जानना चाहते हैं? Come on Saturday. I'll tell you today. और मैं आपको आज बताऊंगा। His prayer उसकी प्रार्थना moved from prayer to worship. और उसकी प्रार्थना जो है प्रार्थना से उठकर आराधना में गई। You see, today in today's culture, people that are watching, in the name of Jesus, I bind this devil who's hiding under the carpet. Come out, come out. I break that. I bat that. Fire in there, fire there, fire in me, fire there. You know, हमेशा हम लोग devil के पीछे लगे रहते हैं. और आज के दिनों में हम देखते हैं कि एक चलन ऐसा हो गया है कि लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि हम उस शैतान को बांधते हैं जो कारपेट के नीचे छुपा है। Hello. Devil bringing the cockroaches, I bind you in Jesus' name. और शैतान जो कॉकरोच को लाता है मैं उसे बांधता हूँ यीशु के नाम से। Everywhere we find a devil to bind. और हर जगह आप देखते हैं कि लोग शैतान को बांधते फिरते हैं। Hello. Devil bringing the rain, I bind. अरे बाप रे. और शैतान तू बारिश लाता है मैं तुझे सब कुछ बांधता bind. हूँ। Devil making the dog bark. Mitch. और अगर शैतान कुत्ते को जो है भौंकने के लिए मजबूर करता है रात उसे हम को। बांधते हैं। I'm everywhere. We are only binding. और Nothing हर wrong with जगह हम बांधना। Hello, we are become more devil centric. और ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा हमारा ध्यान अब शैतान के ऊपर है। Hello, थोड़ा खांसी हो गया devil, I break your power. और थोड़ा सा खांसी हो गया तो हम इस तरह से कहते हैं शैतान तेरी ताकत को मैं तोड़ता हूँ। Hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हो? No, please. There is a place where always we are binding. देखिए ये सब करने की एक जगह होती है, Devil. लेकिन हमेशा शैतान We are become more devil centric. और सबसे ज्यादा हमारा ध्यान अब तो शैतान पर ही है। Church fears devil more than God now. और हम देखते हैं अब परमेश्वर से ज्यादा कलीसिया शैतान से डरने लगी। You know, we were in the car once. और हम एक दिन कार में थे। We were with one, I did not tell you who. और Not किसके our- साथ थे हम ये नहीं बताएंगे। Suddenly one black dog, went, और nice अचानक एक looking काला puppy. कुत्ता हमारी सड़क को पार करके गया। Just,
The person who was with me, blood of Jesus. और जो व्यक्ति हमारे साथ था उसने जोर से कहा यीशु का लहू। I said, why did you say blood of Jesus? और मैंने कहा कि क्यों तुमने कहा यीशु का लहू? No, I knew why he said that. और मुझे पता था कि उसने क्यों कहा। The devil just crossed, he said. और उसने कहा शैतान ने अभी रास्ता जो है वो I said, हमारे that रास्ते puppy से also गया। must have said blood of Jesus because you crossed his path. और शायद उस कुत्ते के बच्चे ने भी कहा होगा कि यीशु का लहू क्योंकि तुम उसके रास्ते के आड़े आए। How many are understanding right now? कितने लोग समझ रहे हैं? You see, church. कलीसिया So it's always good that binding. Some of you know people praying for 1 hour. Shakara bara bara bara. Devil, 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 devil. और ये बांधना क्या अच्छा करते है रहे? लेकिन कुछ लोग जो है 1 घंटे तक जो है इस तरह से बातें करते हैं और From हमेशा the water, शैतान from the शैतान शैतान। mud, from where else यार? नहीं वो दुष्ट आत्मा वो वाटर से है, वो दुष्ट आत्मा ऊपर से, अरे किधर से भी आने दे, यीशु का नाम बस काफी है। हालेलुया। आमेन हालेलुया। पूरा 1 घंटा devil, 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 and people are happy. और लोग खुश होते हैं। When did you worship God? लेकिन क्या वो आराधना करते हैं? See, prayer has to move from prayer to worship. देखिए प्रार्थना जो है वो प्रार्थना से बढ़कर जो है आगे आराधना में वो जाना चाहिए। That is what made Jesus to stop. और इसीलिए यीशु जो है रुक गया। He was walking. वो चल रहा था। He was walking. वो चल रहा था। But suddenly, और अचानक से a blind beggar said, एक अंधा भिखारी कहता है Jesus, यीशु son of David, दाऊद की संतान have mercy on me. मुझ पर दया कर। His feet और उसके पैर stopped. और उसके पैर रुक गए। Listen to me. Look at this. Look at this. और मुझे देखे And the Bible says his feet turned. और बाइबल कहती है कि उसके पैर जो है मुड़ गए। Worship has the potential to draw God near to you. और आराधना में वो सामर्थ्य है जिससे आप परमेश्वर को अपनी ओर अपने निकट ला Are सकते you हैं। going through a challenge? क्या आप चुनौती से जा रहे हो? Are you going through a situation that is tough? क्या आप ऐसे हालात से जा रहे हो जो बहुत सख्त है, कठिन है? Today I want to bring it down to you. Can you spend time worshiping? And honest worship. Honest worship. You see why worship is difficult? और आज मैं आपके पास लाना चाहता हूं कि हमेशा आराधना करें, आराधना करें। आराधना करना क्यों मुश्किल है? You know why? क्यों? Because in prayer you think you are getting. प्रार्थना में आपको लगता है आपको मिल रहा है। मांगो तो मिलेगा, ask मिलेगा, ask, ask. मांगो ask. मांगो मांगो तो तुम्हें मिलेगा। You know, एक गाना होना चाहिए ना, मांगो मांगो मांगो, you know. It's always the flesh wants, wants, wants. But in worship, you're only giving. और शरीर हमेशा मांगते रहता है लेकिन आत्मा में आराधना में क्या होता है हम देते हैं। Somebody say, I receive. और कोई कहे मैं इसे पा लेता Are हूँ। you listening, church? क्या कली से आपने पा लिया? Worship आराधना made Jesus stop. और आराधना के कारण यीशु रुक गया His feet turned towards that blind beggar. और उसके पैर जो है उस अंधे भिखारी की ओर मुड़े। That was a stop of Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यीशु का जो है रुकने का स्थान था। Hallelujah. हालेलुया। Please listen to this. और इसे सुने। I was in Israel मैं इज़राइल में था some time back, और कुछ समय पहले and I was near the tomb of Lazarus. और मैं लाजर की कब्र पर के And it's on पास a था hill, you know. और वो एक So पहाड़ पर है। everybody was like, you know, oh Lazarus, I want to go in the tomb and all that. So I just climbed that hill at the side and I was just sitting. और सभी लोग काफी उत्साहित थे, ओ लाजर की कब्र मैं जाना चाहता हूँ और इसलिए मैं वहां पर गया And I was just looking. It was afternoon. और ये दोपहर का वक्त था It was very quiet. और बहुत ही शांति थी उस जगह And I looked at it और मैंने उस कब्र को देखा and I said, how Jesus must have come to Lazarus, Martha and Mary's house. और मैं कहने लगा कि कैसे यीशु आखिर लाजर और मार्था मरियम के घर आए होंगे And you know, everybody was talking, clicking photographs, and I was lost. और हर कोई जो है बातें कर रहा था, कोई तस्वीर खींच रहा था, लेकिन मैं इस ख्याल में डूबा था। I said, Lord, there may be so many houses, right? मैंने कहा प्रभु बहुत सारे घर होंगे But why did you come in Martha and Mary's house only? लेकिन आखिर तू मरियम और मार्था के ही घर क्यों आया? Hello. And the Holy Spirit said to me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, He said, they knew how to make me comfortable. और पवित्र आत्मा ने कहा उन्हें पता था कि मुझे कैसे जो है इतने आरामदायक जो है सारे- वो मुझे बनाए। इतने सारे घर थे. बहुत सारे घर थे। अगर यीशु मसीह, you know, would God go to somebody's house and say, I want to stay. अरे come, miracle worker आ गया. आओ. Come on, yes or no? और अगर परमेश्वर किसी से come on, कहता कि मैं तुम्हारे घर आता तो लोग कहते रहे हाँ हाँ आ जाओ तुम चमत्कार करने वाले हो Something would have happened. Huh? और कुछ तो हुआ होता। He stayed in Martha and Mary. What made Jesus to stop? Today we're not just looking at the walk of Jesus, we're looking at the stops of Jesus. और हम देखते हैं कि मार्था मरियम के घर Come on, यीशु come गया on, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु चलते चलते रुक गया। आज हम यीशु के रुकने पर ध्यान दे रहे हैं। You see,
Mary was a worshipper. हम देखते हैं कि मरियम जो है आराधक थी। Hello, are you listening right now? क्या आप हमें Martha सुन was रहे a हैं? worker, you know. और हम देखते हैं कि मार्था जो है वो काम करने वाली थी He's a worker, you know. और वो मजदूर थी। But Mary, लेकिन मरियम just sitting at the feet of Jesus. और वो यीशु के कदमों में बैठी थी She's not speaking. और वो बात नहीं कर रही थी, She's hearing. वो सुन रही थी। Worship. So आराधना you hear the voice of God. और वो है परमेश्वर की आवाज को सुनना। Come on, are you listening right now? He gives you direction. और वही है जो आपको मार्गदर्शन Sitting देता at the feet of Jesus. है। और यीशु के कदमों में बैठना। Speak, Lord. प्रभु बातें कर, Servant is listening. आपका दास सुन रहा है। Are you listening, church? You know, some of you कलीसिया, are so क्या आप सुन रहे हैं? frustrated. और आप Some में of से you, कुछ लोग इतने निराश हैं some of you are so, it's not happening, it's not happening, it's not happening. और ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। Because maybe और शायद you don't quiet your spirit. आपने अपनी आत्मा को चुप नहीं करवाया। There's too much of noise inside of you. आपके अंदर बहुत आवाज है। बाहर की आवाज तो कुछ भी नहीं। बाहर की आवाज से आदमी झेल सकता है, लेकिन अंदर की आवाज कैसे शांत करें? और अंदर की आवाज कभी कभी शांत करने के लिए आदमी दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, पिक्चर देखता है, गलत काम करता है, क्योंकि अंदर की आवाज उसको शांत करनी है। कितने लोग समझ रहे हैं? कोई कोई सुसाइड भी ट्राई करता है, बोलते हैं, शांति नहीं होती अंदर की आवाज। Are you listening, church? कलीसिया, क्या आप सुन रहे हो? And that inner voice, that noise, not voice, everyone said noise. और ये जो अंदरूनी जो शोर शराबा है It can be quiet and this one said और इसे that. चुप करवाया That जा one said सकता है। that. इसने ये कहा, उसने वो कहा So much of noise. और इतनी ज्यादा गूंज हमारे अंदर उठती है। उसने क्यों बोला ऐसा? उसने ऐसा क्यों कहा? So much of noise बहुत सारे आवाज। can only be quieted और अगर हम शांत होना चाहते हैं in worship. आराधना में, Lift your hands and just worship Him. और अपने हाथों को उठाए उसकी Everybody at आराधना। home, और हर एक घर में just worship Him उसकी आराधना करें and say, Jesus. और कहे यीशु। Now be quiet. अब शांत हो जाए Just quiet. Just look at Him. और उसकी ओर देखें। Martha and Mary. और हम देखते हैं कि मार्था और मरियम, You see, Mary was a worshipper और मरियम जो है वो आराधक थी। that made Jesus stop at their house. और यही कारण था कि यीशु उसके घर जाकर रुका। Put your hand down. अपने हाथों को नीचे रख। Moses had this revelation. मूसा के पास ये प्रकाशन था। I just don't desire visitation. I desire habitation. और वो कहता है कि मैं मुलाकात नहीं चाहता, मैं तो तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। Not visit. और मुलाकात नहीं, Habit. लेकिन रहना। You know what is visit? आपको मालूम है मिलना क्या है? प्रभु आता है जाता है, but then Moses said, God, I want you to stay here. लेकिन मूसा कहता है, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तुम आप जो है इस जगह पर रहे। He who dwells in the secret place. और वो कहता है कि Dwells. उसके गुप्त स्थानों में रहना निवास, everyone बोले निवास। और उस निवास किसी करना। किसी का घर निवास है ना, निवास। He stays. और उसने वहां निवास किया। You know, please listen to this. और इसे सुने। I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. और मैं वहां रहना चाहता हूँ जहां तुम रहते हो। I love that song. Thank you, Lord. In the Old Testament, और पुराने नियम you know, people were walking through the desert, और लोग रेगिस्तान में चल रहे थे and the pillar of fire, और हम देखते कि आग का वो खंबा pillar of fire would move. और आग का खंबा आगे बढ़ता था The cloud would move. और वो महिमा का बादल आगे बढ़ता था। Hello, 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 hello. Listen to this. And wherever it stopped, और जहां कहीं वो रुकता था the Israelites worship God. और वहां रुककर इजराइल उसकी आराधना करते। Because they know what makes God stop is not activity. What makes God stop is worship. और हम देखते हैं कि जिस वजह से परमेश्वर रुकता है, ये कोई कार्य क्रियाकलाप come नहीं on. है, लेकिन ये आराधना है। Church, if you can get into worship, और कली से अगर आप आराधना में जाएं, J12 leaders worship, pastor, pastor, pastor. If you can get into worship, people will stay with you. और J12 के लीडर्स अगर आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तो लोग आपके साथ बने रहेंगे। Sometimes we try to hold people with personality, और कई बार हमारे व्यक्तित्व से हम लोगों को रोके रखते हैं management skill, और हमारा जो प्रबंधन का कौशल्य है
But what really holds people लेकिन लोगों को क्या रोके रहता है? is the anointing, वो है अभिषेक is the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति का जो एहसास है। How many understand this? और कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? Manipulation sometimes, तो ऐसा करेगा तो ऐसा manipulate. How people control, manipulate this, that, you know. और हम देखते हैं कि एक तरह से लोगों को जो है बेवकूफ बनाना या उनको मूर्ख बनाना है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता how हूँ do you hold a family? कैसे आप एक परिवार को बनाए रखते हैं? Worship. उसकी आराधना करें। Somebody lift your hand and say worship, कोई worship. अपने हाथों को उठाकर कहे आराधना। David was taking the Ark of the Covenant, और हम देखते Jerusalem, and David just takes the Ark in Obed-Edom's house. और हम देखते हैं कि दाऊद वाचा के संदूक को ओबेदेदोम के घर में ले जाता है। I don't know why he took it in that house. और मुझे पता नहीं उस घर में क्यों लेकर गया। Maybe Obed-Edom said, "अरे उधर मत जाओ, इधर लेके आओ." और शायद ओबेदेदोम ने कहा होगा कि वहां मत लेकर जाओ, मेरे घर लाओ। Hello, 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 hello. Listen to this. और इसे And सुने। the Bible says, और बाइबल कहती है Obed-Edom was a worshipper. और ओबेदेदोम जो है आराधक था। Read your Bible, hallelujah. अपने बाइबल को पढ़े। He was one of the temple worshippers, और hallelujah. वो आराधना में आराधना करने Read वाला your एक था Bible, आराधनालय read your में। Bible. अपने बाइबल को पढ़े। I have done a word study on that. और मैंने उस पर वचन का अभ्यास किया। And God stayed in Obed-Edom's house. और परमेश्वर ओबेदेदोम के घर पर रहा। And he worshipped God. और उसने परमेश्वर की आराधना की। Worshipped God. परमेश्वर की आराधना Worship की। God. परमेश्वर की आराधना One day की। the secret service called up David. और एक दिन जो है सीक्रेट सर्विस से लोगों ने कॉल किया। David को call किया, yes. And they said, David, और उन्होंने कहा we know you are the king. दाऊद से कहा कि हम जानते हैं कि तू राजा है We know you have the title. और हम जानते हैं कि तुम्हारे पास शीर्षक है। But have you heard of Obed-Edom? क्या तुमने ओबेदेदोम के बारे में सुना? If you allow God to stay over there for a few more months, अगर तुमने ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर को और थोड़े दिन रहने दिया he will be the next king. तो Hallelujah. वो अगला राजा बन जाएगा। David says, bring the ark. Hallelujah. दाऊद कहता है कि उस वाचा के संदूक को उठा लाओ। David was smart enough. Hallelujah. और दाऊद बहुत ही चालाक था। He knew, वो जानता था boss, it is not my skill. It is not my this. I know my fighting Goliath and all that stuff. It is the presence of God that has made me the king. Hallelujah. और दाऊद जानता था कि Come ये on. उसका युद्ध का कौशल्य नहीं है, गोलियत को मार गिराना नहीं है, Karama लेकिन ये se brother परमेश्वर की उपस्थिति है। If this ministry has to move, somebody has to worship. Hallelujah. और इस सेवकाई को अगर आगे on. बढ़ाना है तो किसी को आराधना करना If you होगा। want to reach in that position, अगर hallelujah, हमें उस स्थान पर पहुंचना है, I decree and declare positions are coming to you. मैं ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि वो स्थान आपको मिल रहा है, वो पद आपको मिल रहा है। Pastor, no, we don't worship God for positions. और हम जो है कुछ जगहों के लिए हम प्रभु की आराधना नहीं करते। Listen to me. और मेरी सुने, We don't worship for the position, और हम किसी स्थान को पाने के लिए आराधना नहीं but we करते। worship God for who He is. और हम आराधना करते परमेश्वर जो है। And then surely goodness and mercy shall follow me. और तब निश्चय उसकी करुणा भलाई मेरे पीछे आएगी। I didn't call it. मैंने उसे बुलाया नहीं। मैंने बुलाया नहीं है। बुलाया। मैंने किधर बुलाया तेरे को? क्योंकि मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ। Yes. वो लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। Yes. How many understood right now? Are you listening right now? और क्या आप मुझे सुन Worship रहे is हैं? the key. आराधना ही कुंजी है। Hey. You know, people in the world, और संसार में जो लोग हैं they will get up, और वो खड़े होंगे they worship money. और वो पैसों की आराधना करते हैं। You know why? मालूम है क्यों? Because they make sure that money does not run. But we don't worship money. क्योंकि वो इस बात का ख्याल रखना चाहते हैं कि पैसा जो है उनको छोड़कर भागे नहीं। हम पैसों की आराधना नहीं करते। नहीं करते। हम देने वाले की आराधना करते हैं। हालेलुया। You see, understand this. और आप इसे समझे Understand this truth. और इस बात को समझे, इस सत्य को समझे। What made Jesus stop? और यीशु को क्या हुआ जिसकी वजह से उसे रुकना It पड़ा? was worship. ये आराधना था। Church, कलीसिया, I want you know, many people they don't understand this. Everyone say the stops of Jesus. और बहुत सारे लोग इसे नहीं समझते। सभी लोग कहे यीशु का रुकना। Obed-Edom, ओबेदेदोम, he was a worshipper. वो आराधक था। Not just with the lights and the smoke. और केवल रोशनी जगमगाती रोशनी Not और that धुएं में नहीं। dink, chicker. No. He says, God, वो कहता है परमेश्वर, I'll worship you. मैं आपकी आराधना I करूंगा। want to tell the band, और मैं बैंड से भी कहना चाहूंगा, अगर लाइट गया तो थोड़ी तुम्हारा वर्शिप बंद हो जाएगा। Our worship must go beyond instruments. Our worship must go beyond the lights. Our worship must go beyond the smoke. और Thank God हमारी for all आराधना this. सीढ़ियों के आगे परे होनी चाहिए और संगीत के परे होनी चाहिए या ये जो धुआं जो उठता है Today, जगमगाती लाइटें उसके आगे होनी Will you चाहिए। make worship a part of your everyday life? क्या आराधना को आप अपने हर दिन का जीवन का भाग बनाएंगे? Tell your neighbor,
अपने पड़ोसी वो को देखो neighbor, तेरा खाली प्रेयर रिक्वेस्ट है, और तुम्हारी सिर्फ प्रार्थना की दरख्वास्त है। गॉड का रिक्वेस्ट भी पूरा कर। मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लड़की चाहिए, मुझे चुन्नू चाहिए, मुन्नू चाहिए। Will you worship the Lord? क्या प्रभु की आराधना करेंगे? Hallelujah. May God touch your life. प्रभु आपके जीवन को छुए। Many people, don't get me wrong, और मुझे गलत नहीं समझे, many people think it is their prayer that drives the devil. बहुत सारे लोगों को लगता है ये उनकी प्रार्थना है जिससे वो शैतान को भगाते हैं। No, नहीं, it is the presence of God that drives the devil. ये परमेश्वर की उपस्थिति है जिसे देखकर शैतान भागता है। Door, जाओ, door, open, door, open, door, open. दरवाजा खुल जा, दरवाजा खुल जा। Door says, get out. और दरवाजा कहता है चले जाओ। But there are some people here. लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं They said, door, और वो कहते हैं दरवाजा, I'm coming. मैं आ रहा हूँ, I'm coming with the presence of मैं God. परमेश्वर की उपस्थिति से के And साथ they आ रहा हूँ। walk near the door. और जब वो दरवाजे के निकट जाते हैं, The door said, excuse me, और दरवाजा कहता है मुझे, excuse me, I'm opening. मैं खोल रहा हूँ। I believe every door will open for a worshipper. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक दरवाजा खुल जाएगा आराधना करने वाले के लिए। Today, आज I want you to open your heart. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को खुला करें। Today, God is going to stop in your home. और परमेश्वर आज आपके घर में रुकने वाला है। God is going to stop in your home today. परमेश्वर आपके घर में रुकने वाला है।